रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ाज पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए. दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडिया एज वेल एज चाइना. इंडिया को ज़्यादा इम्पैक्ट है बिकॉज आई बिलीव 70% ऑफ H1B होल्डर्स आर इंडियंस एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन टेक इंडस्ट्री. बेसिकली अगर आपको अब H1B वीज़ा चाहिए तो कंपनीज विल हैव टू पे $1 लाख फॉर वन वीज़ा. इनिशियली जब ये न्यूज़ आई थी तो ये बोला जा रहा था ये कॉस्ट रिकर्सिव होगी, दैट इज़ यू हैव टू पे दिस लेवाई फी एवरी ईयर, बट दैट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय वाइट हाउस कि ये बस एक ही बार देनी होगी आपको पर वीज़ा बेसिस पे. बट इसको छोड़ के देर आर अदर वीज़ाज एज वेल विच विल गेट इम्पैक्टेड. फॉर एग्जांपल अगर आप H1B वीज़ा पे हैं, आई डोंट रिमेंबर द सब कैटेगरी कि आपका स्पाउस भी काम कर सकता है एंड दे कैन लुक आउट फॉर जॉब्स, दैट विल बी सीरियसली इम्पैक्टेड एज वेल. मोर ओवर अगर आपके बच्चे हैं, सो ऑन व्हाट वीज़ा आर दे गोइंग टू स्टे इन US is something that is going to be impacted as well. You see, now this is not a direct impact on the visa holder, it's an impact to his family. और इन चीज़ों से एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनसर्टेनिटी कि यार यहाँ कैसे रहें, कब तक रहें. और हम जब इंडिया में रह के इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए ये बस एक न्यूज़ है, बट द फैक्ट इज़ ये न्यूज़ बहुत गहराई में जाती है. आप इसको ऐसे समझें कि टेक इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पे मास्टर इन इंडिया. So not only people who are working abroad, but people working in India for foreign companies are contributing a lot to Indian economy. हाँ, the number of jobs के वॉल्यूम में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि the volume is drastically high, but not only that, the volume is not, I feel, the accurate data. It's also about the pay package that you get in IT sector. टेक्नोलॉजी वाले लोग relatively higher paid होते हैं, that is a fact. अब इस चीज़ों से क्या होगा, there are two consequences to it. या तो कंपनीज पैसे दे देंगी या they are going to migrate their business to India. There's also a third aspect to it कि यार AI इतनी तेज़ी से टेक ओवर कर रहा है that companies feel कि now we don't need that एक्स्ट्रा जनता टू डू आर वर्क. जो कि हम 40,000 एम्प्लॉयज़ से कराते थे, अब शायद हम 4,000 एम्प्लॉयज़ में करा सकते हैं. एंड देयर इज़ नो डाउट टू इट. मी पर्सनली वर्किंग इन IT फॉर पास्ट 10-11 years, आई फील AI इज़ contributing a lot to my day to day job. बट एज ऑफ रीसेंट टाइम, मैं आपको रीसेंट मंथ्स की बात बता रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा end-to-end development AI के थ्रू कर दें. You need people who actually have thorough knowledge of coding. You need people who have thorough knowledge of architecture, and that's how you make an application. To make an application scalable and cost effective, and on the other side cost effective in a way where maintenance is cheap, you need people who have thorough knowledge of software industry. हो सकता है ये चीज़ें आगे कवर हो जाएं, but as of now अगर आपके पास thorough knowledge है of software development, तो AI is going to be an add-on. So for example, there's something you want to implement, but you're not able to come up with the accurate solution. Syntax में दिक्कत आ रही है, logical expression में दिक्कत आ रही है, या in fact आपको पता है implement कैसे करना है, but it's taking too much time, या it's, you're leaving out the edge cases. That's where AI is very helpful. आपको एक basic ideology, एक procedure on how you want to move forward, approach चाहिए होती है, but वो approach implementation has been fast tracked, and that's very, very quick. Now, I personally feel there was a lot of clarification given to us by White House at a later point in time. Number one, ये levi fee बस एक ही बार applicable होगी. It will not be applicable on current H1B visas. And the other thing is, people who are right now abroad and will be coming in, they will not be impacted. They'll be allowed to enter US premises as normal. So that's a big relief. But the thing is, ये सोची समझी चीज़ें होती हैं जो एक्शंस लिया जाता है टू क्रिएट अ हाइप, टू क्रिएट अटेंशन, एंड with a lot of tensions among India, US and other countries, these are the political views, ताकि थोड़ी टेंशन बनी रहे. ये लेवरेज की तरह यूज़ होती हैं. आई फील इट विल टेक अ वाइल. We are in a transition period where 3 to 4 years of transition will stay, and that's when we'll understand what are the new types of jobs that will come into the market, what is the type of learnings that we need to do for long term sustainable environment. मतलब आपको उस क्या क्या लर्निंग करने की ज़रूरत है ताकि आप रेलिवेंट बने रहें बेसिकली इंडस्ट्री में, वो आपको 3 से 4 साल में क्लैरिटी मिल जाएगी. देयर विल बी अ फेज़. अभी हम बिल्कुल एस कर्व में चल रहे हैं. देयर इज़ अ एडॉप्शन दैट्स गोइंग ऑन. जैसे ही एडॉप्शन कम होगा, आपको पता लगेगा आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है टू स्टे रिलेवेंट इन द मार्केट. एंड दिस हैपन्स
ओवर एंड ओवर अगेन इन इंडस्ट्री। जब कीबोर्ड्स आए थे या कंप्यूटर्स आए थे तो टाइपराइटर्स या टाइपिस्ट की नौकरियां बहुत ऑब्सोल्यूट हो गई थी, एंड देन दे क्रॉस स्किल्ड देमसेल्व्स, स्टार्टेड कमिंग बैक इन द वर्कफोर्स। देयर इज अ ट्रांजिशन दैट हैपेंस एवरी 10 to 15 years। तो हमारे पेरेंट्स ने वो देखा था, हम अपने टाइम का ट्रांजिशन देख रहे हैं और हमारे बच्चे अपने टाइम का ट्रांजिशंस देखेंगे। सो दिस इज हाउ नेचर टेक्स इट्स कोर्स। Other thing which I have in mind is now people are saying jobs चली जाएंगी। First of all, I feel business बढ़ेंगे एट अ फास्टर स्पीड। अगर आपको पहले 10 दिन लगते थे एक बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट करने में, नाउ यू नीड 1 or 2 days फॉर एग्जीक्यूशन। सो द टाइम टू रीच टू द कस्टमर इज गोइंग टू बी लाइक, इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आई फील थिंग्स आर गोइंग टू ट्रांजिशन। बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स जा रही हैं, ट्रांजिशन विल टेक, आई फील ए आई विल टेक जॉब्स अराउंड 20 to 30% ऑफ जॉब्स बाय 2030। बट देन दिस इज नॉट अ वेरी हाई फिगर, बिकॉज इस ए आई जब जॉब्स लेगा तो एक अलग नेचर ऑफ जॉब्स बनाएगा भी। So that's what I personally feel. Now the other aspect that comes into play is क्या होगा अगर इंडिया की आईटी वर्कफोर्स यूजलेस हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, जैसे कल पीएम मोदी ने हमें बोला कि दे वांट India to be Atmanirbhar. So I'm expecting a lot of good policies to come in for startups, for businesses to be implemented and started in India. अभी I know कितना भी हम कह लें बहुत easy हो गया इंडिया में बिजनेस करना, it's not that easy compared to US, सिंगापुर। यहाँ पे अगर आप देखोगे द ईज ऑफ बिजनेस करना कितना ईजी होता है, you'll understand what difference is there in India as well as in US or Singapore or Dubai in for this matter, right? And आपको एक चीज़ और समझनी है, इंडिया में जब आप फंडिंग करते हो तो आप 50 लाख 1 करोड़ की बात करते हो। जब आप डेवलप्ड इकोनॉमीज में जब फंडिंग की बात करते हो, यू आर टॉकिंग इन मिलियंस। बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जब आपके पास आप लाखों की बात करने आते हो, एंड दैट इज़ बिकॉज टेक is all about scalable implementation and solving a problem. So when you solve problem at a scale, आपको पैसे मिलते हैं, because ठीक है उधर कॉन्सेप्ट ही रिस्क टेकिंग का है कि 10 साल तू पैसे बहा, as long as I see the projection, I see the growth, I see me, my app, my company capturing market, I'm perfectly fine. As long as 10 साल बाद पैसा बनेगा, हम वेट कर लेंगे 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है, विल बी विद यू। बट द idea of execution is something that is very very important. So I feel अभी transition period है, इंडिया यूएस जो negotiations चल रहे हैं, that also adds on to this। थोड़ा सा ये भी है कि कुछ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑन द वर्स्ट केस, दिस इज़ माई वर्स्ट केस अंडरस्टैंडिंग, और ये बस मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको एक इनसाइडर न्यूज़ या कुछ वो सब मत समझिएगा, मैं अपना बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कंपनीज को हो सकता है फाइनल राउंड ऑफ फायरिंग भी करनी हो, दैट्स द रीज़न। आप कितनों को सेवरेंस दोगे आप अगर आपको मेजर फायरिंग करनी है, एंड विद मार्केट करेक्शन से थोड़ा पहले दे वांट टू क्लियर ऑफ देयर बैकलॉग, be done with the firing and start fresh round of hiring। so उससे पहले if they want to fire, वीज़ा अगर नहीं है आप पे तो आपका easy हो जाता है to let go और आपको severance देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। so that can be one of the aspects as well। but I feel with interest rate cutting down, especially मार्च में जब ट्रम्प के supporting Fed में head आ जाएगा, that's going to accelerate the market as well। it's not going to be like कोविड वाला मार्केट की एक बंदे में के पास 6-7 ऑफर हैं, बट वो भी टाइम आएगा, इट विल टेक 2-3 years 4 years फ्रॉम नाउ, एंड दैट मार्केट विल कम बैक। जब आए तो बेहतरीन नौकरियां पकड़ लीजिएगा, तैयार रहिएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। so make sure you're prepared for that। right now uncertainty है, but I feel most of the things will be ironed out। India का IT industry is not going to go anywhere, it's a service based industry। but the idea is even अगर आप स्टार्टअप यूएस में करते हैं, the cost per developer is relatively very very high। आपको if not the same, at times better या worse resource मिल जाता है। at times you don't need very good resources to work for you, you need number of 10 number, like let's say if you need 2 people in US, you can have 10 people in India। and it's not about आप cheap labor hire कर रहे हो, आप cheap and experienced labor hire कर रहे हो, that's where people don't understand। and what happens is you are getting good labor at affordable prices, so that's going to help you सस्टेन एंड मेंटेन योर बिजनेस। तो आप एट अ छोटे लेवल भी काफ़ी वर्क फोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और ये सब छोड़ो, आप सप्लाई डिमांड की बात सोचो, यूएस इज़ ऑलरेडी अ सैचुरेटेड मार्केट, इंडिया इज़ द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड विच हैज़ द एबिलिटी टू सस्टेन ह्यूज वॉल्यूम्स। और जैसे जैसे लोगों पे पैसा आएगा, लोग पैसा खर्च करना भी पसंद करते हैं। सो इंडिया इज़ द नेक्स्ट बिग मार्केट जहाँ पे companies like Google, Microsoft, Tesla, everyone can come in and sell their products, and that's going to
eventually give it back to US in terms of profit. तो I know अभी tensions चल रहे हैं, but long term I feel everything is fine. जब तक कोई मेजर वॉर नहीं होती है या कोई मेजर मेजर इवेंट नहीं होता है दैट इज़ अनफोर्सीन, तो ठीक है, ये अनसर्टेनिटीज चल रही हैं एंड ट्रम्प इज़ नोन टू मेक मार्केट वेरी वोलेटाइल. सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रांजेक्शन का, बट होपफुली बाय द एंड ऑफ आई बिलीव नेक्स्ट मिड ईयर, क्योंकि यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, एवरीथिंग शुड स्टेबलाइज फॉर अ वाइल. उनके जाने तक वो फिर क्या कांड करेंगे वो तो पता नहीं, बट आई फील ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स should start settling down. बिकॉज अभी क्या है, अभी हम बिजनेसेस का इंटरेस्ट रेट टाइटेंड थे अभी, तो उसमें क्या होता है, बिजनेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन आ रही है कि यार तुम्हें ज़्यादा तुम डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं कर सकते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट तुम कम कर दोगे. क्यों कर दोगे? क्योंकि तुम्हें उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लोन लेना पड़ता है फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट, या आप किसी भी कंट्री में हो, आप बेसिकली गवर्नमेंट से तो लोन लेते हो एट द एंड ऑफ द, जहाँ से मनी का सोर्स है, एंड देन यू हैव टू पे अ हायर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन टेनर. तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, दे विल बी एट अ लिटिल ईज किया, या वी कैन टेक मोर रिस्क, वी कैन वी कैन डू अ लॉट बेटर. नाउ वी कैन रीस्टार्ट आवर प्रोजेक्ट्स, जो कि पिछली बार जब रेट बढ़ने चालू हुए थे हमने रोक दिए थे. सो इट्स गोइंग टू अगेन कैच अप, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट या होपफुली आई सी 1.5 years में market should be, और industry in terms of job market should get a little better. जो भी मैं बोल रहा हूँ, this is just my personal feedback, कोई financial या किसी तरह की यहाँ पर advice मत समझिएगा. So that's all it for today. Do let me know आपको वीडियो कैसी लगी.